السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو حالتیں چل رہی ہیں، خاص کر کے ہندوستان میں اور فلسطین میں تو مظلوموں کا اتنا ہتیا ہو رہی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ مل کے کر رہی ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ لگتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک کا سچ ہونے والا ہے، قیامت بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن ہماری اعمال ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ مطلب بری عمل کو ہم ختم نہیں کر رہے ہیں، اچھے عملوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ عمل دو طرح کی ہوتا ہے، ایک بری عمل ہے اور ایک اچھا ہی عمل ہے۔ ہمارے اندر بری عمل تو بہت سارے ہیں، لیکن اچھا ہی کم ہے۔ ہمیں چاہیے دوسروں کو گریبان دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھے، اپنے گریبان میں جا کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے خود کو بہتر کرو، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، تو دنیا اپنے قدموں میں آ کے پڑے گا، تمہارے قدموں میں آئے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو دنیا کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، دنیا ہمارے اندر انگلی اٹھائیں گے۔ تو ہماری جو ہم سنتے ہیں وہی بات ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہندوستان کی بھائی چارہ کو قائم رکھے۔ ہماری یقینی طور پہ ہندوستان کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی سب کے ساتھ ہم مل کے جل کے رہیں۔ لوگ غلط فہمی پھیلاتا ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے محبت نہیں رکھتے، ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی ہندو کا علاقہ میں رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی بھی ہندو ہے، ہر جگہ سے جدھر بھی جایا آج تک ہندو ملا، اور کوئی ہندو ایسا نہیں کہہ سکتا ہم ان کے ساتھ کوئی دشمنی کیا ہے۔ ہماری بہت ساری سہیلی ہے ہندو ہے، بہت ساری سہیلیاں ہماری ہندو ہے، عورتیں ہیں، بزرگ ہے۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہا کہ تم سے ہمیں کوئی 1 روپے کا نقصان ہوا۔ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے اسلامک ہو چاہے غیر اسلامک ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اچھا اخلاص سے پیش آؤ اور اکرام کرو۔ ہم تو وہی بات پہ عمل کر رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یقین ہے، ہندو بھائی بھی ہمیں، ہندو بہن بھی ہمیں اسی طرح نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی اور نہیں ہے۔ آج کل کوئی بھی واردات ہوتی ہے، آپ کشمیر میں گاؤں میں ایک حادثہ ہو گیا، بہت شرمناک حادثہ تھا، جو آتنکوادی نے، دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، انہوں نے انسان کو قاتل کرا، سارا انسانیت کا قتل کیا۔ ہم ان کے خلاف ہے، ان کو ہمیں نریندر مودی سے انورودھ ہے کہ ان کو پکڑ کے کڑی سے کڑی سزا دے، اور اس کو ہندو مسلمان کے نظریے سے نہ دیکھے۔ لوگ بھاگ تو چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسی چل رہا ہے کہ ہندو مسلمانوں کو وقت ووٹ سے خالی کرا جا رہا ہے، تو لوگوں کو میسج جا رہا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان آپس میں لڑائی کر کے مر جائے، کٹ جائے، تو اس کا دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اپنا ہی ہے۔ کوئی بھی بہکا میں آ کے کوئی غلط قدم نہ اٹھائی۔ بہت سارے ہندو بھائی بھی ایسے غلط قدم اٹھا رہے ہیں کہ مسلمان آتنکواد ہوتے ہیں، مسلمان نے یہی کرا، اسلام صحیح نہیں ہے۔ جب کسی کی دھرم کو برا بھلا کہنا کسی کی کتاب میں بھی نہیں لکھا۔ ہم کسی کو آج تک کسی بھگوان کو، کسی
धार्मिक किताब को कभी भी हम बुरा नहीं कहते, तो आप भी हमारी बारे में इसे बुरा बातें ना कहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसा अफवाह ना फैलाई, अपने भाईचारा का सबूत दे, अपने भाईचारा का वो अपने घर में। आप एक बात बताइए, अपने घर में लड़ाई होता है तो खुद की भाई बहन होती है, लड़ाई होता तो कोई थोड़ी यही कहता है कि तू हमारे नस्ल से नहीं है इसलिए तो ऐसा खराब है, नहीं ना। आपस में लड़ाई, दो बर्तन एक होता है तो आवाज होती है। एक देश में हम हैं, उतार चढ़ाव तो होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाले लोगों को हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है इसका मैसेज दूसरे तक जाए और दूसरा बंदा हमारे फायदा उठा के निकल जाए। जैसे पहलगाम के गांव में जो हादसा वो हुआ, वारदात हुआ, इसकी तहते समझ लीजिए। अब यही सोच रहे बंदे अगर ऐसी तरह सोशल मीडिया पे ऐसी बात को उछालते रहेंगे तो लोग तो खुशियां मनाएंगे, दुश्मना हिंद क्या करेंगे, दुश्मनी निभा दिया और वो खुश होंगे और हम आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे। देखिए हम तो समझ जाते हैं, इसलिए हम सबसे विनती करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अफवाह में ना आए और कोई भी ऐसी बुरी बातों का बयानबाजी ना करें। और मुसलमान भाई बहनों से मुझे वह है रिक्वेस्ट है कि सब अमन कायम रखें, सब अल्लाह से खुद दुआ करें। क्या पता अल्लाह ताला आजमाइश दिया है, अल्लाह से खुद दुआ करें, नमाज ही पढ़ें और अल्लाह ताला से पूरा आलम इस्लाम के लिए दुआ करें और हम हिंदुस्तान की भाईचारा को कायम रखें। अल्लाह ताला हिंदुस्तान को सलामत रखे और आपस में इत्तेहाद में रहें और हमारी वोट को भी अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। और श्री नरेंद्र मोदी को मैं ये बात बताना चाहती हूँ, आप वोट की जो बिल लाए इसको वापस ले, क्यों ये किसी की हक में बेहतर नहीं है। आप अपना ये करेंगे, अपने देश को आप झोंकेंगे उसमें, क्योंकि आप खुद देखिए आप क्या हो रहा है। ऐसा मैसेज अगर दूसरे तक जाएगा तो दूसरे को पता लगेगा यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक तरफा कार्रवाई हो रही है, किसी के फायदा उठाएंगे दूसरा। तो आप क्यों दूसरे को फायदा उठाने दे रहे हैं। देश में कोई भी चीज होता है तो मंत्री को ही पकड़ा जाता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो जिम्मेदार होती है, आवाम का ठेकेदार आप हैं, तो आवाम को आपको संभालना चाहिए। किसी एक समुदाय को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। आप जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई इसी भाईचारा को कायम रखें। मेरी लास्ट बात यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बिल को वापस करें और सबको आपस में भाई भाई रहने की तरकीब दें और आप भी मुसलमानों से मोहब्बत करें। आप देखना आपको भी मुसलमान मोहब्बत करेंगे जरूर। आप दूसरे का ख्याल रखेंगे तो दूसरा भी आपका ख्याल रखेगा। आप दूसरे को इज्जत देंगे तो आपको भी दूसरे इज्जत देंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, इज्जत तारीफ है, लायक है आप, लेकिन ऐसा ना करें जो आपको तारीफ कोई ना करे और गाली और स्वागत करे। हम ऐसा नहीं चाहते, हम आपकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है तो आप अपनी मनमानी करेंगे। आप इज्जत से पेश आएंगे तो सब इज्जत से पेश आएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सबको भाईचारा कायम रखें और सबको आपस में ताल्लुकात सही करने की आप कोशिश करें। और मुसलमान भाई बहनों से कहता हूँ सबको इत्तेहाद में रहें, कोई भी गलत कदम ना उठाए। आपके ऊपर बहुत सारे जुल्म होगा, देख ही रहे आप जुल्म हो रहा है। बस संविधान के कानून के दायरे में रहकर अपना बात को रखें, सोशल मीडिया में बात रखें, जो हक बात सच बात है सोशल मीडिया के जरिए दूसरों को दिखाई। जैसे मिलेट टाइम्स एक चैनल है तो हक बात को बताते हैं, और एक मौलाना है जो नाम क्या मैं भूल गई, वो भी रखते हैं। तो ऐसे सब बहुत मुसलमान है जो यूट्यूबर है और
उसका भी है, क्या कहते हैं, मीडिया में भी है। तो उनको चाहिए हक बात और सच बात। देखिए जहाँ अच्छाई होता है वहाँ बुराई भी होती है, तो आप लोग अच्छा हक बात रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब जरूर करेगा। अगर हमें कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसमें भी हमें जो काम हमें कोशिश करना पड़ेगा और कामयाबी अल्लाह ताला जरूर अता करेगा। हमें अल्लाह पे यकीन है। मेरी इस क्लिप को शेयर जरूर करें, दुनिया का हर कोने कोने तक पहुंचाई। ये हिंदुस्तान की बेटी की आवाज है, माँ की आवाज है, बहन की आवाज है, दूसरों तक पहुंचाई जरूर। और मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ पहलगाम के हमले को लेकर। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बहुत सारे 28 लोगों का हत्या कर दी गया, उनको मार दिया गया, बेकसूर लोग थे। और पाकिस्तान, क्या कहते हैं, पाकिस्तान की दहशतगर्दों ने ये वारदात को अंजाम दिया और किस तरह यहाँ से निकल गया आप लोगों को देखना चाहिए। और अभी तक एक भी कातिल पकड़ में नहीं आया, तो जरूर जल्दी कोशिश करें कि उनको पकड़ में आए और उनके सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। और कश्मीर के लोगों को मैं ये कहता हूँ, वहां पे भी 2-3 मुसलमान को भी जान गए। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की आफियत दे। और जो चले गए अल्लाह ताला उनको कलमा शहादत नसीब करे, शहादतों को कबूल फरमाए और वहां के लोगों को सब्र दे। और उनका बहुत नुकसान हुआ है, काम धंधा भी खराब हो गया। अल्लाह उनको रिजिक दे, रिजिक में बरकत दे और जल्द से जल्द कश्मीर की हालत ठीक हो जाए। दुआ करे सब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।